Welcome back to English Guide. I'm your teacher, and today we are going to learn one of the most important concepts in English grammar kinds of sentences according to meaning. Understanding sentence kinds helps you speak confidently, write clearly, and express your emotions correctly. So let's begin. Here we have got the introduction of sentence. So we have got the definition: a group of words that has a subject and a predicate and gives complete sense or meaning is called a sentence. लफ्ज़ों का एक ग्रोह जिसका एक सब्जेक्ट है और एक प्रिडिकेट है और वो मुकम्मल मानी देता है सेंटेंस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं. शी डज नॉट इन्वाइट अस, वो हमें दावत नहीं देती है. क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करें. आर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहे हैं. मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह करे आपकी उम्र लंबी हो. दैट आई वर अ टीचर, काश मैं एक उस्ताद होता. और रे वी वॉन द मैच, और रे हम मैच जीत गए. So now you can see here that all these sentences contain a subject and a predicate, and they all give clear and complete sense. Therefore, they are called sentences. Next, we have got kinds of sentences according to meaning. So we have got some 5 kinds of sentences according to meaning. First, declarative or assertive sentences. Second, imperative sentences. Third, interrogative sentences. Fourth, optative sentences. Fifth, exclamatory sentences. Here I have just made a lecture for 2 kinds of sentences: declarative or assertive sentences and imperative sentences. For interrogative, optative, and exclamatory sentences, you can watch my next video and the part 2 video of same lecture. So here we have got declarative or assertive sentences. What are declarative or assertive sentences? Those sentences which make positive, negative, or emphatic statements and end with a full stop are called declarative or assertive sentences. वो जुमले जो मुस्बत जुमले बनाते हैं, मनफी जुमले बनाते हैं और वो जुमले बनाते हैं जिनमें दबाव होता है एंड विद अ फुल स्टॉप और जिनके आखिर में फुल स्टॉप आता है आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव और इजरेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल, शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है. आई कैन नॉट रन फास्ट, मैं तो तेज़ दौड़ नहीं सकता हूँ. ई विल गो टू बाज़ार. इफ अगर हम यहाँ हेल्पिंग और विल के ऊपर स्ट्रेस करेंगे तो ये एम्फेटिक बन जाएगा. ही विल गो टू बाजार. So kinds of declarative or assertive sentences. We have got some 4 kinds of declarative or assertive sentences. Number 1, affirmative, positive or simple sentences. Number 2, emphatic sentences. Number 3, negative sentences. And number 4, cleft sentences. Now what are affirmative, positive or simple sentences? Those sentences which make simple positive statements are called affirmative, positive और simple sentences. वो जुमले जो मुस्बत जुमले बनाते हो हमारे पास affirmative, positive और simple sentences कहलाते हैं. For example, she wants to be a doctor. वो एक डॉक्टर बनना चाहती है. He will invite us, वो हमें दावत देगा. I would like to take a cup of coffee. मैं एक कप कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा. I hope affirmative sentences are clear to you. Next, we have got emphatic sentences. What are emphatic sentences? Those sentences which contain stress or emphasis are called emphatic sentences. वो जुमले जिनमें दबाव होता है emphatic sentences कहलाते हैं. Note, helping verbs are stressed. जब आप emphatic sentences बनाते हैं, जब आप बोल रहे होते हैं तो आपको helping verbs पर स्ट्रेस करना होगा, उन पर जोर डालना होगा, तभी वो emphatic sentences कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही डज कम हेयर. देखें, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है. अब यहाँ emphatic में हेल्पिंग वर्ब का लाना ज़रूरी था इसलिए कि हमने हेल्पिंग वर्ब को स्ट्रेस करना था. ही डज कम हेयर. और emphatic sentences के आखिर में फुल स्टॉप आता है
अगर आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं वो भी ठीक है. शी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स, वो कपड़े धो रही है. शी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स. I am sitting on the chair. So they are called emphatic sentences, and I'm sure they are clear to you. Next, we have got negative sentences. Those sentences which make negative statements are called negative sentences. वो जुमले जो मनफी जुमले बनाते हो हमारे पास negative sentences कहलाते हैं. For example, she isn't eating food. वो खाना नहीं खा रही है. We won't be there. हम वहाँ नहीं होंगे. He has not played tennis. वो टेनिस नहीं खेल चुकी है. आप फर्स्ट दो जुमलों में कंट्रैक्शंस देख रहे हैं, इज़ नॉट, इजंट और विल नॉट वॉन्ट. फॉर्मल रिटन इंग्लिश में हम कंट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं, लेकिन स्पोकन में हम इनको यूज़ कर सकते हैं. तो जब आप राइटिंग कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप कंट्रैक्शंस को अवॉइड करें. जैसे कि अगर शी इज़ंट ईटिंग फूड लिखा हुआ है तो आप शी इज़ नॉट ईटिंग फूड लिखेंगे. और बोलते वक्त बिल्कुल आप कंट्रैक्शंस यूज़ कर सकते हैं. Next, we have got kinds of negative sentences. There are two kinds of negative sentences. First, we have got double negative sentences. Those sentences that have two negative words but give positive meaning are called double negative sentences. वो जुमले जिसमें दो नेगेटिव अल्फाज हों लेकिन वो पॉजिटिव मानी दे रहे हो, हमारे पास डबल नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. तो इन जुमलों में हमारा जो फर्स्ट नेगेटिव वर्ड होता है इट इज़ नॉट. सेकंड नेगेटिव वर्ड इज़ प्रीफिक्स. मतलब हमने एक रूट वर्ड है जैसा कि कंप्लीट, इसके शुरू में जो है हमने इन को पुट किया तो इनकम्प्लीट हो जाता है. तो इसमें जो इन है वो हमारे पास प्रीफिक्स है जिसके मानी है नो, विच मीन्स नो. फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल. आइडेस्ट, इट मीन्स इट इज़ पॉसिबल. So you can see it is a double negative sentence. It has two negative words. First is not and second is am, and you can see it is giving a positive meaning. Next, the drain is not unclean. It means it is clean. इसका मतलब यह है कि ये साफ है. The second kind of negative sentences we have got emphatic double negative sentences. What are emphatic double negative sentences? Those sentences that have two negative words but give negative meaning are called emphatic double negative sentences. वो जुमले जिनमें दो नेगेटिव वर्ड्स हैं लेकिन ये मनफी मानी ही देते हैं और ये दबाव भी शो करते हैं are called emphatic double negative sentences. First negative word is not, second negative word is no. For example, there is not, यहाँ अब आपने स्ट्रेस करना है no के ऊपर. There is not no sugar. वहाँ कोई भी चीनी नहीं है. They don't have no children. उनके कोई बच्चे नहीं हैं. You can see they are called emphatic double negative sentences. The last kind of declarative or assertive sentences we have got cleft sentences. So what are cleft sentences? When a sentence is divided into two parts and there are ups and downs, we sometimes stress on the subject, object or any other word is called cleft sentence. जब एक जुमले को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं और उसमें उतार चढ़ाव होता है, बाज़ औक़ात हम सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस करते हैं, बाज़ औक़ात हम ऑब्जेक्ट के ऊपर या बाज़ औक़ात किसी और लफ्ज़ के ऊपर हम दबाव डालते हैं, क्लेफ्ट सेंटेंसेस कहलाते हैं. Some important points about cleft sentences. Cleft means gap, crack or divided etc. क्लेफ्ट के मानी है गैप, दरार, क्रैक और डिवाइडेड एट्सेट्रा, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स की वजह से उस एक जुमले में क्रैक आ जाता है. क्लेफ्ट सेंटेंसेस आर यूजुअली मेड फ्रॉम द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. क्लेफ्ट सेंटेंसेस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनते हैं. थर्ड, while making cleft sentences from the simple sentences we need relative words. दूसरी बात ये कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस से क्लेफ्ट सेंटेंसेस बनाते हैं, और जब हम सिंपल सेंटेंसेस से क्लेफ्ट सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमें रिलेटिव वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है. सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर those relative words. So here we have got a list of relative words. You can see we have got some 6 relative words.
First is who. It is used as a subject for people, which is formal. Number two, whom. It is used as an object for people. Third, that, as a subject and object for people, animals, things. Fourth, we have got which. It is used only for things, usually. Fifth, where. It is used for places. Sixth, when. It is used for time. Now you can see here we have got a cleft sentence. Now first we have a simple sentence of the past indefinite tense. अब इस past indefinite tense sentence को हमने 4 cleft sentences में change किया है. कैसे? She cooked the food in the kitchen yesterday. Now see, it was she. अब हम स्ट्रेस कर रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर. जब हम सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस करते हैं, जो रिलेटिव वर्ड हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं, दैट इज हु. इट वाज शी हु कुक्ड द फूड इन द किचन यस्टरडे. तो ये एक लेफ्ट सेंटेंस हो गया. अब इसके मानी क्या है? इट वाज शी हु कुक्ड द फूड इन द किचन यस्टरडे. मतलब वो कोई और नहीं था, वो शी थी जिसने कल बावर्ची खाने में खाना पकाया. And you can also see ups and downs. It was she who cooked the food in the kitchen yesterday. Second example, आप cleft sentence को इस तरह भी past indefinite simple sentence को cleft sentence में ला सकते हैं, जैसे कि it was the food which she cooked in the kitchen yesterday. वो खाना था जो उसने कल बावर्ची खाने में पकाया. Now you can see the stress is on the food. मतलब अब इसका अपना एक मीनिंग होगा कि वो कुछ और नहीं था जो उसने कल बावर्ची खाने में पकाया, वो फूड था जो उसने कल बावर्ची खाने में पकाया. इट वॉज द किचन वेयर शी कुक्ड द फूड यस्टरडे. वो किचन था जहाँ उसने कल खाना पकाया. So it means it was not the room, it was not any other place, it was the kitchen. Last, it was yesterday when she cooked the food in the kitchen. मतलब वो कल था, ये कल का दिन था, कोई और दिन नहीं था जब उसने खाना पकाया बावर्ची खाने में. And you can see we have also used these relative words according to the words which we are stressing upon. So every sentence has got its own meaning. I'm sure they are clear to you. If you have any confusion, I can also talk about the kinds of cleft sentences if you really want to know more about them. So you can ask your questions in the comment box. Okay, now we have got the second kind of sentence, imperative sentences. What are imperative sentences? Those sentences which contain command or order, less command, request, proposal or suggestion, advice, offer, invitation, instruction or prohibition are called imperative sentences. Imperative sentences हमारे पास क्या हैं? वो जुमले जिनमें हम ऑर्डर करें, जिसमें हम लेस कमांड यूज़ करें, जब हम किसी से दरख्वास्त करते हैं, किसी को मशवरा देते हैं, किसी को नसीहत करते हैं, पेशकश करते हैं, दावत देते हैं, हिदायत करते हैं, मतलब गाइड करते हैं, और प्रोहिबिशन या मना करते हैं, आर कॉल्ड imperative sentences. Okay, we have got some very important points about imperative sentences. Imperative sentences start from the first form of the verb. Because you is always the subject of imperative sentences, it is usually not used but understood. Imperative sentences first form of verb से शुरू होते हैं क्योंकि you इसका subject, हमेशा इसका subject होता है. Imperative sentences का ये इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन समझा जाता है कि यहाँ you ही इसका subject है. Number two, if you is used in an imperative sentence, it may be used to indicate any particular person. अगर जुमले में एक imperative sentence में you इस्तेमाल होता है, इसके इस्तेमाल होने का मकसद ये होगा कि ये किसी मखसूस शख्स की तरफ इशारा करेगा. Third, a noun or name can be used instead of you in an imperative sentence. एक noun या कोई भी नाम इस्तेमाल हो सकता है एक imperative sentence में. For example, we have got command or order. It's the first usage of imperative sentences. इसको हम हुक्म के लिए यूज़ करते हैं. How? Close the door.
अब आप अगर यू लगाएंगे इधर, यू क्लोज द डोर, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी मखसूस शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप, कोई और नहीं, आप दरवाज़ा बंद करें। कीप इट ऑन द टेबल, इसे मेज़ पर रखें। फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाए। लेस कमांड, अब कमांड और लेस कमांड में क्या फ़र्क है? लेस कमांड इज़ यूज्ड व्हेन यू जस्ट से टू समबडी टू डू समथिंग हु इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। आप किसी को किसी काम का कहते हैं जो आपके मातहत ना हो। सिट डाउन, बैठ जाएं। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए गिलास पानी लाएं। टर्न ऑफ द टेलीविज़न, टेलीविज़न बंद करें। तो अगर आप यू यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी मखसूस शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप कोई नेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नाउन, जैसे कि गर्ल्स सिट डाउन। हाँ, और आप इस तरह भी कह सकते हैं अली सिट डाउन। तो आप देख सकते हैं कि आप a noun or name can always be used instead of you in an imperative sentence. Request, please forgive me, मेहरबानी करके मुझे माफ़ करें। प्लीज़ रीड द बुक, मेहरबानी करके किताब पढ़ें। पेंट द हाउस, प्लीज़ घर रंग करें, मेहरबानी करके। सजेशन, लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखें। पॉलिश योर शूज़, अपने जूते पॉलिश करें। वॉक डेली, रोज़ाना सफ़र करें या वॉक करें। ओके, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ ऑर्डर, लेस कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन। आपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़े होंगे, तो उन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी हम इन यूजेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को इन्हीं यूजेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में फिर कोई फ़र्क नहीं है। I'm sure everything is clear here. So let's move towards the next examples of imperative sentences. We have got advice, tell the truth, सच बोला करें, obey the elders, बुजुर्गों की इताअत करें, offer your prayers, अपनी नमाज़ें अदा करें, offer पेशकश, take tea, चाय पिए, eat with us, हमारे साथ खाएं, be seated, बैठ जाओ, invitation, दावत के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को? कम एट 7 o'clock, 7 बजे आ जाएं। हैव डिनर विद अस, हमारे साथ रात का खाना खाएं। ज्वाइन आवर पार्टी, हमारे पार्टी में शामिल हो जाएं। इंस्ट्रक्शन, अगर आपने किसी को हिदायत करनी हो, टर्न राइट एट द फर्स्ट ट्रैफिक लाइट, पहली ट्रैफिक लाइट पर आप मुड़ जाएं। टर्न लेफ्ट, क्लाइम डाउन द लैडर, सीढ़ियों से नीचे उतरे। Okay, now we have got the last usage of imperative sentences, which is prohibition. अब prohibition क्या है? मना. We use don't at the beginning of any imperative sentences to prohibit someone of doing something. हम don't use करते हैं किसी भी imperative sentences के शुरू में, जिसके मतलब है कि आप किसी को मना कर रहे हैं किसी भी चीज़ को करने से। So we have got prohibition plus order. अब यही prohibition हमारे पास imperative sentences के तमाम usages के साथ put होगा। अगर आप किसी को order कर रहे हैं कि आप कोई काम ना करें, for example, don't close the door, दरवाज़ा बंद मत करें। Don't keep it on the table, इसे मेज़ पर मत रखें। आप you भी यूज़ कर सकते हैं, for example, you don't close the door। अगर आप you यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप किसी ख़ास शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो दरवाज़ा बंद ना करें। इसी तरह आप कोई नाम भी यूज़ कर सकते हैं। असलम, डोंट क्लोज द डोर, असलम दरवाज़ा बंद मत करें। नेक्स्ट वी हैव गॉट प्रोहिबिशन प्लस लेस ऑर्डर। हमने ऑर्डर और लेस ऑर्डर, कमांड और लेस कमांड पहले भी डिस्कस किया था। लेस कमांड इज यूज्ड व्हेन यू जस्ट से टू समबडी टू डू समथिंग हु इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, डोंट सिट डाउन, ना बैठें। डोंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए गिलास पानी मत लाओ। प्रोहिबिशन प्लस रिक्वेस्ट, प्लीज़ डोंट टेक इट, प्लीज़ इसे मत उठाएं। डोंट मीट हिम, प्लीज़ मेहरबानी करके उससे ना मिले। अब रिक्वेस्ट में हमारे जो यहाँ जुमले हैं और ऊपर जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के हमने जुमले बनाए थे वो चेंज होंगे। आप इस तरह नहीं कह सकते कि डोंट फॉरगिव मी प्लीज़, नहीं, ये तो सेंस ही नहीं दे रहा है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट अ सेंटेंस दैट इट शुड गिव कंप्लीट सेंस। सो सेंस हमारे पास इस तरह बनते हैं। नेक्स्ट वी हैव गॉट प्रोहिबिशन प्लस सजेशन, डोंट वेस्ट टाइम। अब बिल्कुल इसी तरह सजेशन के लिए हम नहीं कह सकते डोंट पॉलिश योर शूज़, डोंट लर्न इंग्लिश, बट हम कह सकते हैं
डोंट वेस्ट टाइम, अपना वक्त ज़ाया ना करें. डोंट स्लीप लेट एट नाइट, रात को देर तक रात को देर से ना सोएं. ओके, वी हैव गॉट प्रोहिबिशन प्लस एडवाइस. डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलें. डोंट अब्यूज द पीपल, लोगों को गाली मत दो. प्रोहिबिशन प्लस ऑफर. डोंट टेक टी, चाय ना पिएं. डोंट बी सीटेड, मत बैठे. प्रोहिबिशन प्लस इनविटेशन. डोंट कम एट 7 o'clock, 7 बजे ना आए. डोंट हैव डिनर विद अस, हमारे साथ खाना रात का खाना ना खाएं. प्रोहिबिशन प्लस इंस्ट्रक्शन. डोंट टर्न राइट, आप राइट ना मुड़े. डोंट क्लाइम डाउन द लेडर, सीढ़ियों से नीचे ना उतरें. So I'm sure everything is made clear here, and here we complete the kinds of two kinds of sentences: declarative or assertive sentences and imperative sentences. So for the next videos, for the next kinds of sentences, you can watch my next video, especially for the kinds of sentences: interrogative sentences, optative sentences, and exclamatory sentences. Thanks for watching. So these are the 5 kinds of sentences according to meaning. If you learn to identify and use them correctly, your speaking and writing will become more effective and powerful. Thank you for watching English Guide. Don't forget to like, share, and subscribe for more easy grammar lessons.